Hello students. So today we'll start with residential status. There is a lot of difference between residential status and citizenship. In India, the tax liability of an assessee depends on his residential status rather than his or her citizenship. So क्या होता है इंडिया में? You can acquire the citizenship of India using 4 ways: by birth, by descent, by registration, or by naturalization. All these provisions are listed under the Citizenship Act 1955. So, for your clarity, whenever the citizen word is written in your question, you don't have to pay any specific attention to that particular point. For our purpose, the importance is to find the residential status of the individual, because in tax, we have to charge the person as per his residential status. Determination of a residential status of a person is very significant in order to find out his or her tax liability. So first question is how to determine the residential status of an individual. So in India, as per section 6 of Income Tax Act 1961, there are 3 types of residents: resident, non-resident and deemed resident. In the resident, you can further subdivide into between resident and ordinary resident and resident but not ordinarily resident. So I'll just discuss each of these in detail, but for the time being, just remember that residency in India is determined by physical number of days stay in India. So the person, if he is staying in India and for example he's going out from India, so for the purpose of calculating the number of days, the day he is going out from India is also included, or if in case the person is coming to India, then that day is also included. So coming and going out, both of the days are included in terms of calculating the physical number of days stay in India. So for individual, there are बेसिक कंडीशंस. ओके, अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं. सो बेसिक कंडीशंस कहां पे स्पेसिफाइड है? अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1. बेसिक कंडीशंस आपकी 2 हैं और वो बोलते हैं कि उन दोनों में से चाहे कोई भी सेटिस्फाई हो जाए, एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन. फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज he is in India in the previous year for a period of 182 days or more. ठीक है, सो प्रीवियस ईयर में इफ द पर्सन इज इन इंडिया फॉर 182 days or more, we'll say that the person is resident of India. Okay, in case it is not being satisfied, then you'll move to the next condition. The next condition is he is in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. जो भी previous year होगा उससे पिछले और 4 साल. सो बेसिकली यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन और इंक्रीज हो जाती है. तो आप फर्स्ट तो प्रीवियस ईयर का देखोगे कि 60 डेज से ज्यादा है क्या, अगर है उसका फिर पीछे का देखोगे वो 365 डेज और उससे ज्यादा होना चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो भी वील से दैट द पर्सन इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक कंडीशंस. ठीक है, दोनों में से चाहे कोई भी सेटिस्फाई हो जाए, हम बोलेंगे कि ही इज अ रेजिडेंट. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स अप दैट व्हाट ऑल आर द कंडीशंस व्हिच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कैटेगरीज. ओके, सो कुछ कंडीशंस हैं आपकी जो कहती हैं कि उनके लिए ये सेकंड कंडीशन इज नॉट रेलेवेंट. उनको सिर्फ इस कंडीशन से ही चेक करना है, आपको सेकंड देखनी ही नहीं है. ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस देयर आर 3 कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी इज एन इंडियन सिटीजन who leaves India during the previous year for the purpose of employment outside India. So employment doesn't mean that the person has to be unemployed, okay, or he is leaving India for the purpose of employment. It is not the case. In case the person is already employed and he is going out from India for any kind of foreign assignment, that person also falls into this particular category. देखो ना, Indian citizen है, ठीक है. सो अगर वो कभी भी बाहर जा रहा है इंडिया से एम्प्लॉयमेंट के रीजन की वजह से, सो वो सेकंड कंडीशन नहीं देखनी, खाली 182 डेज वाली कंडीशन देखनी है. दूसरी,
Indian citizen who leaves India during the previous year as a member of crew of Indian ship. अगर ऐसा कोई केस है कि वो एज अ मेंबर ऑफ क्रू वो शिप से बाहर जा रहा है, तो उस केस में भी द फर्स्ट कंडीशन इज द ओनली कंडीशन विद विच वी विल चेक वेदर ही इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. देन नेक्स्ट इज Indian citizen or person of Indian origin who comes on a visit to India during the previous year. कैसे चेक करोगे whether the person is of Indian origin? उसकी डेफिनेशन भी है. A person is deemed to be of Indian origin if he or either of his parents or any of his grandparents, including both maternal and paternal, were born in undivided India. Undivided India means before the partition. Partition कब हुआ था? 15th August 1947. उससे पहले, शायद 14th August को हुआ था. उससे पहले undivided India से पहले अगर उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे मटर्नल साइड हो चाहे पटर्नल साइड हो, अगर वो बॉर्न हुए हैं तो वील से दैट द पर्सन इज ऑफ इंडियन ओरिजिन. सो कोई बाहर से अगर ऐसे इंडिया में आया है विजिट के लिए, तो उस केस में भी आपको सेकंड कंडीशन नहीं देखनी है, आप फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे ही चेक करोगे. अब विद असेसमेंट ईयर 21-22 एक और नई चीज आ गई है. ठीक है, वो चीज आ गई है फॉर द पर्सन, फॉर द इंडिविजुअल who is being a citizen of India या फिर Indian origin who visit India, जिसकी total income from Indian sources is greater than 15 lakhs. अब हम क्या देख रहे हैं? इनकम. ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है कि दो कंडीशन से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए हम रेजिडेंट बोल देंगे, बट दूसरी कंडीशन जो है वो 3 कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है. अब एक और पॉइंट आ रहा है, जो भी आपके इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, अगर उनकी इनकम इज ग्रेटर देन 15 lakhs फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, नॉट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज. ठीक है, इंडियन सोर्सेज जो इनकम होती है ना, वो इंडियन इनकम होती है. हम आगे जाके बहुत डिटेल में भी करेंगे इनको. दीज आर ऑल द इनकम्स विच अक्रूज और अराइजेज इन इंडिया. ठीक है, या फिर कोई बिजनेस है जो बाहर है या कोई प्रोफेशन है जो बाहर है, बट इट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. ठीक है, सो अगर ऐसा कोई केस होता है तो वी से दैट दिस इज एन इंडियन इनकम. ठीक है, सो जो भी अगर इंडियन सोर्सेज से उसकी इनकम, इफ इट इज ग्रेटर देन 15 lakhs, इफ इट इज यस, तो आपकी सेकेंड कंडीशन जो थी ना 60 डेज वाली, वो रिप्लेस होके 120 डेज हो जाएगी. उस केस में आप उसकी दोनों कैटेगरी से रेजिडेंटशिप चेक कर सकते हो, या तो 182 डेज हो या फिर प्रीवियस ईयर में 120 डेज और मोर हो, और 365 डेज हो और मोर ड्यूरिंग द 4 previous years. ठीक है, उस केस में आपकी सेकंड कंडीशन पिक्चर में आ जाएगी. इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? सेकंड पिक्चर में आएगी ही नहीं, सारे इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन सिटीजन्स के लिए, बट वहां पे इनकम का कोई बात नहीं थी. अब असेसमेंट ईयर 21-22 से कहा है कि जिसकी इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज इज ग्रेटर देन 15 lakhs, उस केस में फिर से सेकंड कंडीशन आ जाएगी. ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो फिर 182 डेज से. मतलब अगर इनकम कम है 15 लाख से, तो सेकंड कंडीशन नहीं देखनी है. किन की? उन 3 कैटेगरीज की. ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस करी थी. बट अगर उनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो सेकंड कंडीशन आ जाएगी, बट 160 की जगह कितने डेज हो जाएंगे? 120 डेज. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. So conclusion, if I would say about the individuals being citizen of India or Indian origin who visits India, अगर उनकी इनकम इफ इट इज ग्रेटर देन 15 lakhs, तो हम दोनों कंडीशंस यूज करेंगे, या तो वो 182 डेज और मोर हो प्रीवियस ईयर, या फिर वो प्रीवियस ईयर में 120 डेज और मोर हो और 365 डेज और मोर हो ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. और अगर इनकम लेस देन 15 lakhs है तो भाई आपकी फर्स्ट कंडीशन से ही we will determine. Next, deemed resident. This is also incorporated in assessment year 21-22 under section 6 subsection 1a. Deemed residents are those people if they are satisfying these 3 conditions. First condition, should be an Indian citizen. ठीक है, इंडियन सिटीजन हमें पता है 4 कैटेगरी से आप एक्वायर कर सकते हो, बट आपके क्वेश्चंस में डायरेक्ट आएगा सिटीजन वर्ड आएगा, एक्विजिशन की कोई बात नहीं होगी. Having total income from Indian sources more than 15 lakhs. ठीक है, तो इनकम ग्रेटर देन 15 lakhs.
not liable to pay tax in any other country or territory. This is very important. Sometimes what happens, people stay in different kind of countries in such a way that they don't become resident of any of the country, they become non-resident of all the countries. उनसे क्या होता है, उनका टैक्स कम हो जाता है. तो इसी टैक्स को बचाने के लिए अब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है, अगर आप कहीं पे टैक्स नहीं पे करते हो किसी और कंट्री में और आपकी इनकम इज ग्रेटर देन 15 लाख और आप इंडियन सिटीजन हो, तो आपको डीम्ड रेजिडेंट हम मानेंगे. ठीक है, ये गवर्नमेंट कहती है. नेक्स्ट इज non-resident. It is an individual who does not satisfy any of the conditions, then he'll be treated as a non-resident. So पहले वो conditions check कर लेना, अगर कोई भी satisfy नहीं कर रही है तो हम कहेंगे non-resident. Next check is, पता चल गया कि resident है या नहीं है. अगर है resident तो अब 2 steps और check करोगे आप, whether he is a resident and ordinarily resident or he is not ordinarily resident. So what are the conditions for resident and ordinarily resident? If he satisfy both the conditions. What are the conditions? He has been resident in India in at least 2 out of the 10 previous years immediately preceding the previous years. So minimum 2 में पिछले 10 previous years में immediately preceding the previous year में वो resident होना चाहिए. दूसरी condition कि पिछले 7 साल immediately preceding the previous year उसका stay 730 days या more होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोलेंगे द इंडिविजुअल इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट. ठीक है, सबके ना टैक्स रेट्स डिफरेंट होते हैं, इसी वजह से बाइफर्केशन होती है. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी ऐड हुआ है, दैट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन will be resident and ordinarily resident if he stays in India for an aggregate period of 182 days or more, but in this case his total income should exceed 15 lakh. अगर नहीं कर रही है exceed तो हम नहीं मानेंगे, but अगर exceed कर रही है तो he will always be ROR. Not ordinarily resident are the individuals who satisfy at least one of the basic conditions. पहली तो basic condition एक तो वो करेगा ही तभी वो resident है, बट जो एडिशनल कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई कर रही है वो नहीं कर पा रहा है. ठीक है, सो उस केस में हम ये बोलेंगे कि रेजिडेंट तो है बट ही इज नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट. ऑल्सो a citizen of India or a person of Indian origin, if he stays in India for an aggregate period of 120 days or more but less than 182 days and his total income exceeds 15 lakhs. ये आपकी उस कैटेगरी के बारे में बात हो गई जिसमें एक सेकंड कंडीशन इंक्लूड करी थी कि अब आप इनकी 120 डेज वाली को चेक करोगे अगर इनकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख से ज्यादा है. सो हमेशा याद रखना, उनको हमेशा क्या बोलेंगे, अगर 120 डेज से ज्यादा है बट 182 डेज से कम है और उनकी इनकम इज ग्रेटर देन 15 लाख फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, तो वो हमेशा NOR ही होंगे. ठीक है, वो कभी भी ROR नहीं होंगे. ROR तभी होंगे जब एटलीस्ट स्टे 182 डेज से ज्यादा होगा उनका. ठीक है, तब वो ROR बनेंगे. बट अगर 120 डेज से ज्यादा है, 182 डेज से कम है, तो वो हमेशा NOR बनेंगे. और डीम्ड रेजिडेंट भी हमेशा NOR ही रहेगा. ठीक है, उस अगर तुम्हें पता लगता है कि वो डीम्ड रेजिडेंट है तो उसके आगे कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू राइट डीम्ड रेजिडेंट्स आर ऑलवेज नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट्स. ठीक है, so if I have to tell you in a diagram, resident in for checking the ROR and NOR, a resident should be in India for at least 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year, and क्योंकि both conditions satisfy होनी चाहिए ना, he has been in India for 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant financial year. So इससे वो क्या होगा, अगर दोनों conditions satisfied है, he is ROR. लेकिन अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन ओरिजिन है और उसका स्टे इज ग्रेटर देन 182 डेज और उसकी इनकम जो है फ्रॉम इंडियन सोर्सेज इज ग्रेटर देन 15 लाख, वो भी ROR होगा. अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है या दोनों नहीं होती तो वो NOR है. इसके अलावा अगर किसी इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का स्टे 120 डेज से ज्यादा है बट 182 डेज से कम है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और उसकी इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज इज ग्रेटर देन 15 लाख, तो वो भी NOR होगा क्योंकि 120 डेज का कंसेप्ट आ गया. 182 से ज्यादा तो ROR है, 120 से 182 NOR है. और डीम्ड रेजिडेंट भी हमेशा NOR होगा.
I hope this video is clear. In case of any doubts, please write in the comment section. I'll definitely try to redress them all. Thank you for watching.